This question was not planned, let me tell you. So, of course, हर कहानीकार कहानियों से ज़िंदगी जीते जीते और देखते देखते ही बनता है, right? तो ये yes, to be honest, these are real life inspired stories. कुछ देखी हैं, कुछ सुनी हैं, कुछ महसूस भी की हैं. तो hopefully everyone should be able to little bit relate to it. Yeah. Kiku was so much fun to work with, especially Gunjan. I mean, she's like full of energy and I mean, ये चुप ही नहीं होती थी, हमें बोलना पड़ता था कि शॉट शुरू करें गुंजन. But yeah. True. Yeah, I would agree. Yeah. So Okay. it was a lot of fun, full of energy, full of, I mean, people who are actually passionate about work. I mean, nobody, I think, here worked for money or for any other benefits, I must say. No, I mean, wanted to go to the US. Okay. Okay, holiday. What's my take on love? Yeah. What's your take on love? Your kind of love. My kind of love. On-screen love. On screen. Yes, you have seen the trailer, so there is a lot more. Sure. So, hi everybody, good afternoon. It was truly a wonderful experience because I think I was the last addition to the whole crew and it was my fault because I did not respond to Gunjan. जो platform पे उन्होंने मुझसे connect करना चाहा, I thought it is one of the many, unfortunately. But जब उन्होंने बताया कि ये सब stars लोगों के साथ इन्होंने already काम किया है, so ऐसे चलो मैं बात कर लेती हूँ कि authentic है कि ऐसे ही कोई message भेज रहे हैं. So I called up Bhagyashree, I spoke to Sameer and they said, हाँ, we've had great experience, you must go. So मैं गई, वहाँ पे shoot किया, चाहे विधि हो या the whole crew, Amit ho, इनके husband, and Gunjan. It truly was a wonderful experience. Of course, Samiksha, Kiku, Irfan, इनके साथ मेरी story है. तो ये story एक unmatched या mismatched couple की है. I don't want to say anything else. आप story देखिए, बहुत interesting है. और हम लोग काफ़ी हंसी मजाक कर रहे हैं कि बॉम्बे अमेरिका जा रहे थे तो ये कर लिया बट ऑनेस्टली इफ़ यू सी द फिल्म इन टोटलिटी इट आई थिंक इज़ अ प्रीटी यूनिक फिल्म आई डोंट थिंक इनफैक्ट मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ लुकिंग एट द कास्ट वी गॉट टुगेदर आई थिंक अभी जुगल हंसराज इज़ नॉट हेयर गौरव गेरा इज़ नॉट देयर कीकू इज़ नॉट हेयर So to get such a cast, and we all have been around for a long, long time, but never got an opportunity to work together. So to get such kind of cast together, I don't remember last time कौन सी फिल्म में ऐसा हुआ था. And ये भी नहीं है कि that she has not done justice to any of the characters. Each character is very important to the story. So that's one thing. And the topic. I think she had sent me the script and bold stories. मैं थोड़ा डर गया था कि यार ये भी क्या करवाएगी. But when I read the script, it's so tastefully done. I think in today's day and age, I think everyone, like she said, Gunjan very nicely said that everyone's going to relate to it. And एक जगह है ऐसी फिल्मों के लिए जो I think जो explore नहीं की है
की गई हैं, बिकॉज नॉर्मली हम जब NRIs की बात करते हैं तो वही होता है ना, शाहबाज शाहबाज, तो सब NRI ऐसा नहीं कर रहे होते. So they are very interesting topics. Each story, my story deals with an open marriage. So, but very tastefully done, and hats off to you, Gunjan. I mean, I can never, and to her husband who lent her to us for so long. So really, I've seen that. No, I really, and after seeing the promo and I saw the film, what remarkable job each of the actors have done. I mean, Hiten, hats off, man. Great. थैंक यू. मैं ये कहना चाहूँगी कि ओरिजिनली गुंजन जी ने ये सारी कहानियों को ग्रे स्टोरीज़ कहा था. वाकई मुझे लगता है कि ब्लैक एंड वाइट सिर्फ न्यूज़पेपर होता है. हम सब इंसान जो होते हैं, हम ज़िंदगी को चाहते हुए भी ब्लैक एंड वाइट में नहीं देख सकते. हम आपस में अपनी दोस्तियों को, रिलेशनशिप्स को, एक दूसरे को हमेशा कोई ना कोई एंगल से जज करते हैं, और हमारा बोलने का, बिहेवियर का तरीका हर इंसान के साथ अलग अलग होता है. और उसके वजह से जो हम कहते हैं ना कि इंसान या तो सच्चा या ख़राब होता है, अच्छा या ख़राब होता है, वैसी बात कभी नहीं होती. हर अच्छाई के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुक्स भी होते हैं, और कोई इंसान पूरा का पूरा ख़राब भी नहीं होता है. कहीं ना कहीं उसमें कोई अच्छाई छुपी होती है. और हमारी ये जो कहानियाँ हैं वो ऐसे रिलेशंस के ऊपर है जहाँ पर ऊपरी ऊपरी तो हमें सब अच्छा दिखता है, लेकिन जब अंदर झांको तो जैसे हम सबके घरों में कोई ना कोई प्रॉब्लम वाला इंसिडेंट होता है, या प्रॉब्लम वाला शख्स होता है, या शायद कोई प्रॉब्लम ही शुरू हो जाती है, पर कैसे उसे समझा जा सकता है, कैसे उसे how you can deal with it, and how you can carry on your life after that. So these are very, very interesting stories, something very different than I think it's never been shown before. And I would credit Gunjan क्योंकि हर एक कहानी उन्होंने बड़ी शिद्दत से लिखी है और अपना दिल उसमें डाल के लिखा है. एंड आई थिंक दैट्स द ओनली रीज़न वाई ऑल ऑफ अस एक्चुअली अग्रीड टू डू इट. क्योंकि जब सोशल मीडिया पे कोई कांटेक्ट करता है तब हम सोचते हैं पता नहीं ये रियल हो सकता है या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल लोग समझते नहीं. आई मीन एवरीवन कैन बी डिसेप्टिव. पर जब गुंजन से हम लोगों ने बात की इंडिविजुअली, आई थिंक इट स्टैंड्स ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस, तो शी पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट एंड द वे शी स्पोक एंड शी वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट एवरी सब्जेक्ट, एवरी फॉर मी, फॉर आवर स्टोरी, फॉर समीर और फॉर एनीवन एल्सेस स्टोरी. जिस तरीके से उन्होंने नरेट किया वाकई उस पर दिल आ गया और हम लोगों ने बोला कि ये चीज़ तो हमें ज़रूर करनी है. सो क्रेडिट टू यू गुंजन फॉर गेटिंग ऑल ऑफ अस हियर ऑन बोर्ड, एंड honestly we are so hoping for the audience to receive it just as well. I didn't mean it in a bad way, but I'm just saying that when I asked Gunjan how to and my director Vibhu, I said, give me what should I do for this character differently, and how do I work on this character. So I was very impressed because Gunjan told me only my role particularly in this whole film was based on her life. So I just had to observe Gunjan every day. So yeah, that was very interesting. So Masti part was like being part of the group, the whole production team. हम लोग actually एक group बना and we call it हम पांच. And we still do a lot of masti in that group. So when I went for the shoot for the very first time, of course it was very, eye-opening for me because unlike other stars, I am a newbie actually. So I am from the US. I am a true NRI. I've been living there for like 26 years. But again, in सबसे मिलके ये सब तो since these guys are also NRIs, those 5 girls, and I was the only guy. And a lot of masti, lot of fun, of course, and then Hiten joined there, and he also joined our group.
And we also dragged him into all the conversation, all the fun, musty part into it. Of course, Bhagyashri was there, and I remember I was driving her from one place to other. I was doing multiple jobs actually, by the way. So I was doing this. Yes, all of us actually. So lot of fun. So we were singing in the car. We were doing a lot of fun when we were not shooting, and it was total fun experience. I would like to say that this song has been written by Gunjan. तो आप खास गौर कीजिए. The words are very interesting. कौन कहता है सीने में अलमारियाँ नहीं होती. I mean, the first time I heard that, I was so caught up with the words because जब lyricist, formal lyricist लिखते हैं तो उसमें एक मीटर अलग तरीके से होता है. But here, I was very impressed that the producer could write like this. So, here are 2 lines. कौन कहता है सीने में अलमारियाँ नहीं होती. कौन कहता है कौन कहता है इस छोटे से दिल में मीलों लंबी गहराइयाँ नहीं होती. कौन कहता है दिल को रोशन किया यूं तेरी हंसी ने दस्तकती हो जैसे रोशनी ने. दिल को रोशन किया यूं तेरी हंसी ने दस्तकती हो जैसे रोशनी ने. तू बन के आया हंसी आरज़ू, तू मिला तो ज़माना मिला. खुशियों को नया एक पैमाना मिला. फिर से आज मुझको बहकने का एक बहाना मिला. कि बहुत सारी कहानियाँ जो ये बोल रहे हैं कि इनके लाइफ पे है, ये भी बोल रहे हैं कि समीर सोनी जी उनके क्रश थे. फिर काफ़ी कुछ ये स्क्रीन पे दिखने वाला है. एग्जैक्टली. तो पता नहीं कौन सी अलमारियों के पीछे या कौन सी अलमारियों में कौन से खाने के पीछे क्या क्या रहस्य छुपा था गुंजन जी की दिल की अलमारी के पीछे, जो सारी के सारी कहानियाँ यहाँ पर आ चुकी है. सो आई थिंक गुंजन जी, स्पेशल क्रेडिट टू योर हस्बैंड एक्चुअली. ऑफ कोर्स फिल्म जो होती है ना, सॉरी भाग्यश्री, आई मीन यू आर अमेजिंग विद द वर्ड्स. और मुझे नहीं पता था कि भाग्यश्री इज सो क्रिएटिव. ऑफ कोर्स वी वर ऑड, always odd, everyone is odd with Bhagyashri. Listen. This is your film, you get the credit. Let's end it here. Superb having, the launch of the trailer and of the songs. Or Chandana ji, this is lovely having your voice. For all of us, I think सारी दिल की कहानियाँ, दिल के सारे जो क्या बोलते हैं इमोशंस है, वो सब उभर के बाहर आते हैं इन गानों से. So thank you so much and wish everyone all the best over here. देखिए, बोल्ड फिल्म है क्योंकि बोल्ड सब्जेक्ट है. लेकिन जैसे कुंजन जी ने पहले ही कहा है कि बोल्ड सब्जेक्ट का ये मतलब नहीं है कि न्यूडिटी दिखाई जाए या अपनी भारतीय संस्कृति को भूला जाए. तो वही चीज़ मेंटेन की इस फिल्म में भी. इस फिल्म में भी किस नहीं है. एक भी किस. ये जब लिखा है गीत, इस पे सारे इमोशंस बाहर आ गए हैं. दिल का दर्द समझ में आता है, प्यार का एहसास समझ में आता है. और चंदना जी का जो वॉइस था वो इतनी सुरीली आवाज़ है कि दिल में जाके बस जाती है. तो ऑब्वियसली मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने सॉन्ग देखा ये. And it was beautiful. I mean, I really loved it. Hollywoodish area in America. और मैं we have great shooting locations, जैसे मैंने बोला था. तो हमारा इंटेंट है कि हम अपनी हिंदुस्तान से अपने बॉलीवुड स्टार्स के साथ अपनी इंडियन फिल्म्स बनाएं, but in our Hollywoodish area in America. So that's why we call it Holly in Bali, and I didn't want to, like I said before, we don't want to incorporate nudity for the heck of it. I love touching bold stories because, in a very sensible, mature way, ideally.
ऑब्वियसली आपने जिक्र किया कि द ग्रास इज़ ग्रीन ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड. आपने मेंशन किया कि आप बर्तन मांजते हैं. बस शायद अमेरिका में डिश वॉशर ज़्यादा पाए जाते हैं. डिश वॉशर में डालना भी पड़ता है ना उसको धो के. तात्पर्य ये था कि आप रिलेशनशिप में होते हैं, आप किसी से शादीशुदा हैं 5 साल 10 साल 15 साल से, तो ऑब्वियसली लव तो होता ही है ना. आदत क्या होती है? आई मीन लव इज़ हैबिट, राइट. और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो तो उसमें आप पति पत्नी नहीं, भाई बहन और बहुत तरह के रिश्ते बन जाते हैं एक दूसरे के साथ. पर डिज़ायर्स भी होती हैं समटाइम्स, आई मीन यू कैन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग एल्स, लाइक यू मे हैव एस्पिरेशंस, सो नाउ हाउ डू यू ड्वेल बिटवीन दोज? आपकी रूट्स, आपके एथिक्स, आपके वैल्यूज़ आपको खींचते हैं और आपके आप ऑफ कोर्स प्यार भी करते हैं जिसके साथ होते हैं. नाउ डू यू परस्यू दोज डिज़ायर्स और वो आप हमारी फिल्म में देखेंगे. हमारी एक मैं बात बोलना चाहूँगी, हमारी फिल्म येस बोल्ड हैं, बट इनमें वी हैव वोवन ब्यूटिफुल मैसेजेस विद इन दैम. सो कहीं ना कहीं महाभारत में जाके आप रामायण देखेंगे. अपने अपनी फिल्म की प्रमोशन करते, डिस्कस नहीं करते. देख लिए वो देखने आएंगी, फिल्म देखेंगी जब भी देखेंगी. और मैंने वो फिल्म देख ली है, उनकी फिल्म देख ली है. इट्स नाइस, इट्स डिफरेंट. तो अब कोई जजमेंट नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि अरे बाप रे क्या. इट्स नाइस, लेट द ऑडियंस डिसाइड द फेथ. हम लोग को तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा ही लगता है. हमारा प्रोडक्ट जान से प्यारा है यार, मेहनत की है तो हमें तो प्यारा है. अब इट्स ओवर टू यू, हाउ डू यू टेक इट, हाउ डू यू लाइक इट. दीपिका पादुकोण और कौन है और भी हैं यार, विक्की कौशल. मगर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें इनके साथ काम करना है. ब्यूटीफुल क्वेश्चन सर. एक मैं कौन होती हूँ चुनने वाली? एक कहानी अपने पात्र खुद चुनती है सबसे पहले तो. क्या बात. थैंक यू. और दूसरी बात ये बोलूँगी कि जैसे आप सब मेरी आवाज़ से आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आप सब देख सकते हैं. आई एम नॉट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, आई एम अ न्यू फिल्म मेकर. जैसे इन सब ने बताया, हमारे तरफ से हो ना, मीडिया से आप मैं पत्रकार थी. जी मैं आई वाज अ टीवी न्यूज़ एंकर. जी. सो लेकिन इतने साल 19 साल हो गए थे, मतलब 17-18 साल हो गए थे छोड़े हुए इंडिया को. और एक कीड़ा था कि नहीं कुछ ना कुछ आई मीन वी वांट टू ब्रिंग क्रिएटिव फिल्म मेकिंग हेयर. सो मैं नहीं जानती थी, मेरे पास कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कुछ नहीं था. तो the only way I knew was to, and my business is Job Genie. I am in HR industry for 19 years in America. I approached them for whatever way I could, Insta, Facebook. और कई बार जैसे कीकू ने मुझे 1 महीने बाद जवाब दिया. लोगों ने बोला नहीं कीकू नहीं आएगा, 2 एपिसोड छोड़ने पड़ेंगे उसको कपिल शर्मा शो के, एंड यू कांट अफोर्ड हिम. ऐसा भी बहुतों ने बोला. बट अगेन पीपल डोंट ज्वाइन कंपनीज, पीपल ज्वाइन पीपल. Fantastic. So when you come across authentic, जब आपका इंटेंट अच्छा हो, मैं नहीं बोलती हम परफेक्ट हैं, बहुत सारे फ्लॉज थे, हम तो सीख रहे थे, पर इन सब ने सिखाया भी while working with us. So now to answer your other question, आप मानेंगे नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही. अगेन पता नहीं मैंने शायद कोई अच्छे कर्म किए थे, और इतने सारे जो एंजल्स जुड़े हुए हैं हमारे प्रोजेक्ट में, इनकी ब्लेसिंग्स थी कि कई ऐसी कहानियां हैं. जब मैं लिख रही थी ना, जब मैं सोच रही थी, ऑफ कोर्स मेरे 2 और राइटर्स हैं इस प्रोजेक्ट में जिन्होंने सपोर्ट किया. राज कौशल जी को भी मैं बिग टाइम थैंक्स कहना चाहती हूँ. लेट राज कौशल जी, आई एम नॉट किडिंग, मेरे को उन्होंने स्क्रीन प्ले में हेल्प किया. समीर सोनी को जब मैंने रीच आउट किया तो राज कौशल ने इनको भी बोला कि हाँ, Samir was my first cast, and big thanks to him that he agreed. And then Raj Kaushal जी ने 1-2 लोगों को और भी बोला, मुझे जानते थे कि हाँ ये अच्छी लड़की है, अच्छा प्रोजेक्ट होगा, you should give it a try. So big thanks to God bless him. Yeah, but any experience, I mean, तो लिखते रहते, sorry sir, I have to address this. आप मानेंगे नहीं, जब मैंने कहानी लिखी, मैंने भाग्यश्री को सोच के लिखी सच में, और ब्लेसिंग वो मुझे ईश्वर ने नवाजा. मैंने ऑफ कोर्स मैंने जैसे बोला, बिल्कुल सच है, जुगल हंसराज किसके क्रश नहीं थे हमारी. आई मीन आई एम 41 years old. सो समीर सोनी ऑफ कोर्स, ये मैं सच में मेरे 2 क्रशेस थे, क्योंकि ऑल्ट बालाजी की वो आई थी ना बेवफा से वफा, उसी टाइम देख के हटी थी मैं. वो हमारे NRIs में बहुत फेमस हुई थी बेवफा से वफा. तो ये 2 क्रशेस थे, तो यूनिवर्स ने वो मिलवा दिया, आप ये समझिए. और भी बहुत सारे जो आपको किरदार देख रहे हैं, राइमा सेन, आई मीन सभी लोग जो सोचे थे, बहुत सारे ऐसे किरदार वो मिलते गए. सो यहाँ पर इसलिए गुंजन जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, आप सबको बुलाया है, ताकि वर्ड ऑफ माउथ हो, आप लिखें इसके बारे में, अच्छी चीज़ें लिखें. मैं ये सोचती हूँ कि एक ये अपने आपको NRI औरत जो 2 बच्चों की माँ सिर्फ यहाँ और एक सपना लेकर आई थी, तो फॉर मी
जब इन्होंने ये कहा मुझे, तो मुझे लगा एज अ वुमन आई शुड सपोर्ट हर. मैं ये सोचती हूँ कि जो भी इंसान अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहता और उसे पाने के लिए बहुत सारी मेहनत और अपने आप को डुबा सकता है, वो इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ. तो it's a blessing actually that it has come here with all of us and you people are there in front. तो इससे ज़्यादा blessing और क्या हो सकती है? See, I'd like to add one thing. I firmly believe that we are living in a world of media. It's the media revolution. You heard of industrial revolution, you heard of agricultural revolution. This is media revolution. Everything is perceptions. And you people are the ones who are running it. Okay? So that is why it is so important for people like us to have your support, right? क्योंकि हम बोलते हैं यार ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ऐसी फिल्में बननी चाहिए. अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो हितेन मैं वगैरह कितना बोल लेंगे, मैं भाग जी कितना बोल लेंगे? It is up to you people, really. तो yeah, I mean अगर आप लोगों को genuinely पसंद आया है और and you think what we've done is sensible, because what she said that we've made a bold film. Not a vulgar film, not a titillating film. It's only the topic. And it's a genuine, sincere effort. Yeah, and it's a genuine, sincere film. So it's up to you, really, to get the word out. हमने जो करना था हमने कर लिया, आगे it's up to you.